It's called ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बुक इस साल ही पब्लिश हुई है, अभी इंग्लिश में आई है। इट इज वन ऑफ द अमेजॉन बेस्ट सेलर and this book is available in all over the world and already sold in more than 10 countries. As they said, it is available on Amazon and Kindle Unlimited. Imagine meeting a software product native, a software professional, a digital enthusiast, and a blogger. Rakting Sim got an opportunity to work in Infosys' Finacle suite of products and is a certified SAFe 4.0 with over 25 years at Infosys. He is an expert in wealth management and corporate banking domain. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, Rashi. To start with, tell us about yourself, the brand Raktim Singh. Over to you. गोंडा से हूँ मैं। ये लखनऊ के पास में है और मैंने अपना 12th जो है वो गोंडा से ही किया है। उसके बाद मैंने आईआईटी में हो गया था, तो मैं आईआईटी बीएचयू में 4 साल मैंने बीटेक किया और उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई जॉइंड इन्फोसिस एज यू सेड, द फिनिकल सूट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम 1995 आई एम इन बैंगलोर। अभी तो 25 साल हो गए हैं वर्किंग इन वेरियस पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड हैप्पी टू बी हियर। So we believe that you have written a wonderful book. Please tell us about that book. It's called ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे साथ रहा, आई गॉट अपॉर्चुनिटी आल्सो टू वर्क इन डिजिटल बैंकिंग एंड आई हैव सीन दोस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो I started writing on LinkedIn earlier and later it has taken a logical shape of writing this book. तो ये बुक इस साल ही पब्लिश हुई है, अभी इंग्लिश में आई है। इट इज वन ऑफ द अमेजॉन बेस्ट सेलर and this book is available in all over the world and already sold in more than 10 countries. The whole idea of writing this book was to remove all those technical jargons, तो simply कैसे कोई even a person who is a technology background or does not have a technology background should be able to understand. As they said, it is available on Amazon and Kindle Unlimited. So taking it further, Raktim ji, what is digital transformation? Over to you. Very good question. And to be honest, maybe 2 years back, I also started thinking about it. What is digital transformation? Everybody is talking, and आप बोलिए तो शायद मैं बैंगलोर में हूँ, which is like India, Silicon Valley. So, what is digital transformation? Then finally, what I realized, actually, you do business transformation. आपका जो काम है, आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो या अपनी पर्सनल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो। और जो मैंने बुक में लिखा है, तो आई सेड देयर आर 4 थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट आई सेड यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग लाइक डिजिटल एक्सपीरियंस। देखिए, पहले हम लोग मूवी देखते थे, फिर बीच में डीवीडी नॉल आ गई, तो आप सिनेमा हॉल में जाते थे, डीवीडी पे देखते थे। अभी क्या हो रहा है, वो हम फोन पे देखने लगे हैं मूवीज अपना, लाइक द व्हाट पार्ट हम लोग जो पहले करते थे, बहुत सारी चीजें रिमेन सेम। उसका हाउ हैज गॉट डिफरेंट इन द सेंस now you can do everything through your mobile phone at any point of time, whether it's morning, evening, after office hours. You can watch movie at any place, in your whatever, in along with your friends or along with your family, or you want to watch it alone at your speed. So digital experiences, what remains same, the how has got different, and you are able to get that experience anytime, any place, anywhere, on any device. So this is the digital experiences. Second part, now to do this transformation, I have called it out in my book like WISE problem, WISE, which is know your why, integrate with the external world, breaking the silos and environment and culture. मैं बस थोड़ा सा एग्जाम्पल वहां पे दूंगा। जैसे हम नाइकी शूज को देखें, तो उनका वाय है कि आई विल मेक यू हेल्दी, तो फॉर आपको हेल्दी रहने के लिए आपको जॉगिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, और इसका ना आपको अच्छे से शूज चाहिए। तो दे आर नॉट सेइंग दैट आई एम सेलिंग यू शू, आई एम मेकिंग यू हेल्दी। दूसरा जो मैं बोला, एंड हम लोग उसको और भी बात करेंगे, इंटीग्रेशन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, क्योंकि आप अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप साथ में और लोग से मिलकर कैसे चीजें कर सकते हैं।
साइलोस का ये हुआ कि वो तो मतलब हर जगह पे हो ही जाता है, किसी भी कंपनी में लोग कई बार आपस में बात नहीं करते, बहुत सारे पीछे सिस्टम होते हैं। और इन्वायरमेंट एंड कल्चर तो मतलब कल्चर इज ऑफ कोर्स, न्यू इरा में तो कल्चर, आपको एक नया कल्चर बनाना ही पड़ेगा। तीसरा है, एंड उस पर भी हम ज्यादा बात करेंगे, एसिड। एसिड, यू हैव टू अप्लाई द एसिड फॉर्मूला विच इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ द थिंग एंड डेटा। इस पे हम आगे भी बात कर लेंगे। चौथी चीज फिर मैंने बोली है कि ये तीन चीज और ठीक है, और हमेशा ये याद रखिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो केवल एक इनेबलर है, आपको केवल हेल्प करेगी कुछ करने के लिए। तो हमारे साथ पहले भी रहा है, हमने साइंटिफिक चीजें देखी हैं, न्यूक्लियर पावर दोनों जगह से यूज हो सकते हैं आप उससे, और पावर बना सकते हो आप उससे, बॉम्ब भी बना सकते हो। यही टेक्नोलॉजी का भी है, वो आपको हेल्प कर देगी, बट आपको उसे ढंग से यूज करना होगा। और चौथा मेरा पॉइंट है वो थोड़ा सा, वो डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी पे मैंने बोला है, विच इज रिलेटेड टू द, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी लाइक द स्टडी कैसे ह्यूमन रेस इवॉल्व हुई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले भाई क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एग्रीकल्चर ही था। तो अब जैसे आप कहीं सोचिए कोई सिटी लाइफ, लास वेगास, और तो देयर वाज नथिंग लाइक नाइट लाइफ और एनीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो लोग सवेरे उठते थे, सूरज ढल गया, सो गए। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, तो लोगों ने फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने शुरू हुए। पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनते थे जो कि नदी के किनारे बनते थे, क्योंकि आपको स्टीम पावर चाहिए। जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो अब ये वो, अरे वो तो मतलब मैं कहीं भी बना सकता हूँ। कार आ गई, टेलीफोन आ गया, तो हर चीज के बाद हम लोग बढ़ते गए, ह्यूमन रेस इवॉल्व होती गई और हम लोग करते गए। मेरा मानना यह है कि आगे क्या होगा, और जो अभी भी थोड़ा हो रहा है, जो ये डिजिटल चीज है, तो वो हमें हेल्प करेगा, हमें बताएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। ये चारों चीजें करके आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। So, this was very knowledgeable, Raktimji. Can you explain in simple terms about these technologies to the audience? मैं बता रहा था कि डेटा, तो जैसे हमारी मीटिंग चल रही है, ये डेटा स्टोर हो गया, और सभी टाइप का डेटा स्टोर हो गया। और ये अभी कई इयर्स में इस टाइप से बहुत सारी कैपेबिलिटी आ गई हैं कि हम खूब सारा डेटा हर एक के बारे में स्टोर होता जा रहा है। तो पहली एक चीज मैंने बोली डेटा। दूसरा मैंने बोला है क्लाउड। तो क्लाउड कई लोगों ने सुना होगा, है ना, उस पे आप जाकर स्टोर कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उसका और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले क्या होता है, जैसे बैंक का कहीं हम एग्जांपल लें, तो बैंक का आपको सेटअप करना है, तो पहले से ही आपका, समझ लीजिए, डेली तो उस बैंक में सपोज 1000 ट्रांजेक्शन होते होंगे, तो आपने वैसे मशीन खरीद ली थी। पर जब क्वार्टर एंड हो रहा है या ईयर एंड पे, तब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तब तो आपके लाखों अकाउंट हैं, और शायद वो 31 मार्च को तो बहुत कुछ करने का है। तो आपको वो बड़ी मशीन ही रखनी पड़ती थी। तो क्योंकि उस वक्त क्या करेंगे भाई, जब क्वार्टर एंड हो रहा है या ईयर एंड हो रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले दिन से ही बड़ी मशीन रखनी पड़ेगी। कहीं आपको बैंक सेटअप करना है तो बड़ी मशीन खरीदनी पड़ेगी। वो साल के शायद 200 दिन या 250 दिन तो बस उस पे कुछ 1000 ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे या 2000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। केवल शायद हम मैं बोल लूँ 20 या 50 दिन क्वार्टर एंड और सब कुछ मिलाकर, ईयर एंड मिलाकर, तब उसका ढंग से यूज होता था, बाकी मशीन खाली पड़ी रहती थी। पर अब क्या है, क्लाउड पे कहीं आपको बैंक सेटअप करने का है, तो आप जो अमेजोन है या माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत लोग अपना क्लाउड की ऑफरिंग करते हैं। आप उनके साथ बात कर सकते हो कि भाई मेरा डेली का तो इतना ही ट्रांजैक्शन है, तो मैं इतना तुम्हारा प्रोसेसिंग पावर यूज करूंगा, और जब 31 मार्च हुआ, 31 दिसंबर हुआ, तब मेरे मिलियंस वाला होगा, तो मुझे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, पर मैं केवल उसी वक्त पैसा दूंगा। तो दो चीजें हो गई। जब मैं कोई चीज सेटअप कर रहा हूं, तो ये हमारे बिजनेस के लिए भी ट्रू है और बैंक्स के लिए भी ट्रू है। आपको अपफ्रंट नहीं देना पड़ रहा है, आपको अपफ्रंट उतना सोच के नहीं देना पड़ रहा है कि अरे मिलियन ट्रांजैक्शन होंगे तो क्या होगा। आप शुरू कर सकते हो, 10 ट्रांजैक्शन है तो भी आप शुरू कर दो, और जब जरूरत पड़ी तो आपको मालूम है कि बस मैं उस वक्त उनसे ले लूंगा जो कुछ भी प्रोसेसिंग पावर है क्लाउड पे, और यूज करके और वापस कर दूंगा। तो जितना मैंने यूज किया, केवल मैं उतना ही ले रहा हूँ, मुझे एश्योरेंस है कि मुझे मिल जाएगा, और मैं उतना ही पैसा दे रहा हूँ। तो फिर तीसरा मैंने बोला है इंटरनेट ऑफ द थिंग। उसका भी मैं पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग सभी लोग गूगल का ट्रैफिक वो मैप यूज करते हैं, ट्रैफिक पता लगता है।
तो जैसे मेरा मानना ये है, शायद शायद वो इंटरनेट ऑफ द थिंग पहला वही हुआ था, इन द सेंस कि गूगल मैप कैसे बताता है कि ट्रैफिक है कि नहीं है, उस रोड पे कितने लोग एंड्रॉयड फोन लेकर हैं, और कितने लोग हैं उस जगह पे, उस चौराहे पर, उस गली में, उस सड़क पे, उसका डेटा देकर आपको बता देता है कि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा है या ट्रैफिक कम है। तो क्या कर रहा है, वो जो डिवाइसेस लोगों की पॉकेट में है या कार में है, उससे डेटा लेकर बता रहा है। तो इंटरनेट ऑफ द थिंग इज लाइक कनेक्टिंग ऑल द थिंग्स थ्रू इंटरनेट। तो मोबाइल फोन से हो गया, या अभी हमारा एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, और स्मार्ट मशीन हो गई, वॉचेस हो गई, तो ये सब चीजें डेटा कलेक्ट कर रही हैं, और इसकी पावर अब देखिए तो उसने सभी लोग को कनेक्ट कर दिया है। हॉस्पिटल की मशीन हो गई, मेरी वॉच हो गई, फोन हो गया, हमारी ये चैट हो गई, सब चीजें एक तरह से कनेक्ट हैं। तो मैंने अभी तक तीन बातें बताई, एक तो कि डेटा हमारा बहुत सारा आ रहा है, और क्लाउड आ गया है, तो इन सबको प्रोसेस करना बहुत ही चीप हो गया है, कोई भी सेटअप कर सकता है। और डेटा कलेक्शन भी जो है वो स्मार्टली हो रहा है, इंटरनेट ऑफ द थिंग। इन तीनों चीजों को मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसकी तो मतलब वैसे तो ये 1960 से शुरू हुआ था, मैंने भी बाद में पढ़ा कि 1960 से ही कुछ कुछ चलता रहा। फिर हुआ था कि मशीन वो देखकर आइडेंटिफाई कर लेगी कि भाई ये कैट है कि ये डॉग है। ऐसे चलता रहा, पहले बड़ी हाइप रही, फिर हाइप हुई, फिर वो हाइप डाउन भी हुई, क्योंकि उसका लोग को ज्यादा बिजनेस बेनिफिट नहीं समझ में आ रहा था। और मैं तो प्रोग्रामर हूँ, तो मुझे मालूम है कि आपको कहीं बताना है कि ओके ये कैट है, तो मतलब मुझे सब पूरा कोडिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, कैट की दो आंख होगी, कान ऐसा होगा, ये होगा, फिर कैट स्माइल कर रही है, कैट ब्राउन कलर की है, तो वो हर चीज के लिए। तो कहीं मैं उसकी एक एनालॉजी दूं, जैसे अभी क्या हो गया है, समथिंग लाइक reinforcement लर्निंग, इट्स पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या है, स्टूडेंट कई कई टीचर से सीख रहा है, तो वो केवल एक ही टीचर को नहीं, बाकी टीचर से भी सीख रहा है। तो एक तो था कि टीचर इज पुशिंग द थिंग, तो मैं अपना कोडिंग कर रहा हूँ और मैं पुश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ समझो ऐसे होती है कैट, बड़ा मुश्किल है। फिर अच्छा अच्छा स्माइलिंग कैट है, अच्छा वीपिंग कैट है, अच्छा कैट चिल्ला रही है, तो मेरे को अलग अलग करना पड़ता था। अभी वो चीज नहीं, अभी मशीन को हम फोटो दिखाते जा रहे हैं और बता दे रहे हैं देखो ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये डॉग है, वो मशीन खुद से सीखती जा रही है। बहुत ही सिंपल वे से आपने एक्सप्लेन किया है रत्न जी। तो आपको पता है कि हमारा एनजीओ एमएसएमईज के साथ वर्क करता है। सो हाउ एमएसएमईज कैन बेनिफिट फ्रॉम डीटी? ओवर टू यू। अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं गोंडा में था, और मुझे बुक्स पढ़ने का शुरू से ही बड़ा शौक था, और एक बुक आती थी चिल्ड्रन नॉलेज बैंक उस टाइम पे, और गोंडा में नहीं मिलती थी। तो जैसे मुझे, और गोंडा में कुछ शॉप ओनर होते थे, तो फिर मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करता था कि भाई जब लखनऊ जाओगे तो खरीद लेना। अच्छा, फिर मैं उसे पैसा मैंने पहले से दे दिया। फिर वो दो तीन ही लोग थे वो जो अपना लखनऊ गए, उनको जो मेजर बुक गोंडा में सेल होती है वो खरीदी। कहीं मिल गई मेरी वाली बुक तो ठीक है, फिर वो मैं वेट किया करता था, सवेरे गया शाम को आएगा बताएगा। तो अच्छा ठीक है, फिर नहीं मिली, अच्छा उसने बोला नहीं नहीं अब अगले हफ्ते जाऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये तब होता था जब मुझे जैसे चिल्ड्रन नॉलेज बैंक बुक खरीदनी थी। अभी मैं दूसरा एक्सपीरियंस देता हूँ। पिछले साल ऑफ कोर्स कोविड हुआ, और हम सभी लोग बहुत सारी चीजें ढूंढने लगे, कि हेल्दी चीज क्या होती है। तो जैसे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि यू शुड यूज घी विच इज मेड ऑफ काउ मिल्क, रियल काउ मिल्क। और मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, एक शॉप मिली जो कि गुजरात में है। मैंने उसका देखा, रेटिंग देख ली, रिव्यूज पढ़ लिए, पता लग गया कि हाँ ये अच्छा है। मैंने इंटरनेट पे ही ऑर्डर कर दिया, और वो आ भी गया, और मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ना तो कभी मैं उस शॉप को गया, ना कभी उससे मिला। अच्छा, वो घी सही में उतना अच्छा है कि नहीं, फ्रेंड ने बोला था, पर मेरे पास सब रिव्यूज भी पड़े हुए हैं, मैंने इंटरनेट पे देख के पता कर लिया हाँ भाई जेन्युइन है कि नहीं है। मैंने ढूंढ के निकाल भी लिया कि गुजरात में इस शॉप पे एक अच्छा सा घी मिल रहा है, और वो मेरे को डिलीवर भी हो गया। अपने हम लोग एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उनके बिजनेस के लिए एक तो ये है, अभी जैसे मैंने बोला, मैंने तो गुजरात वाले को मैं मिला भी नहीं हूँ, वो मुझे जानता भी नहीं होगा, और मैं तो अब कई महीने हो गए उससे घी मंगा रहा हूँ, उसका काफी अच्छा घी घी और बहुत सारी चीजें और भी हैं, च्यवनप्राश हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अब
कहीं वो जो शॉप है जो गुजरात में, कहीं उसने इंटरनेट पे नहीं रखा होता, क्लाउड पे नहीं रखा होता, तो मैं उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाता। तो हमारा भी जो लोग भाई लोग का है, जो अपना बिजनेस है, तो आपको अभी एक कैपेबिलिटी मिल गई है, कहीं आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे बेचने के लिए आप ये क्लाउड पे और जो डिफरेंट अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप वहाँ पे रख सकते हैं। और जो हमारे पेमेंट सिस्टम है, बी इट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई कैश का कुछ वो नहीं कि पहले ये होता था भाई अच्छा भाई पहले पैसा भेजो, डीडी बना के भेजो, कई बार होता था। 3 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, एक तो आपका कहीं प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप ग्लोबल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। दोनों लोग को जैसे मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि अच्छा वहां पर मैंने ऑर्डर किया था और वहां से अभी घी की पैकिंग हो गई है, गुजरात से निकल गया है, बेंगलोर आ गया है, अब मुझे इस दिन मिलेगा। एकदम प्रेडिक्टेबिलिटी है, मेरे को भी वो है कि हाँ मैं पूरा ट्रैक कर रहा हूँ। दूसरा मुझे इवन फार्मिंग में भी लगता है, अपने जो किसान लोग हैं उन्हें कई बार पता नहीं होता भाई कितना फर्टिलाइजर लगाना है, जो बन गया कैसे बेचने का है। बहुत ज्यादा नहीं, पर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अभी बहुत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे आपकी जमीन कहाँ पर है, आप जहां पर आप खेती कर रहे हैं वो गोंडा के पास है कि लखनऊ के पास है, और शायद उस कारण फर्टिलाइजर कम लगाना को ज्यादा होगा पहले। हम अपने सारे व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स जो भी हमारे एमएसएमईज और एसएमईज हमसे कनेक्टेड हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, हम सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रत्न सिंह जी से बात करिए। उनका नंबर, उनका वेबसाइट डिटेल्स, उनका ईमेल आईडी इस फीड पे अवेलेबल है। यू कैन easily reach out to him, write an email to him, and he will surely guide you and mentor you in case you want. अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो हम सबको दरख्वास्त करेंगे कि इनकी बुक खरीदिए। दे हैव सम रियली वैल्यूएबल पॉइंट्स और बहुत ही आसान तरीके उन्होंने इस किताब में बताए हैं। आप अपने छोटे से बिजनेस को डिजिटली कैसे ट्रांसफॉर्म करके अपने लिए बहुत सी सेल्स और ग्रोथ अपने लिए आप इनवाइट कर सकते हैं। The easiest way and to transform your business is to get hold of book Driving Digital Transformation by Raktim Singh. So go ahead and grab your copy.